خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 3 آف دیوان کی از قلم آرزو پریشی خان. ماہر کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے. ماہر نے ماہی کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا تو اس نے سانس لیتے ہوئے کہا، اب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جس کا تم نے ہر بار فائدہ اٹھایا ہے، لیکن آج وہ کروں گا جو تم ہمیشہ یاد رکھو گی. کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ ماہی خود کو اکیلا ماہر کے ساتھ دیکھ کر ڈر گئی تھی. ماہی کی بات پر ماہر نے ماہی کو دیکھا اور اپنی جیب سے ایک بوتل نکالی اور اس کے ساتھ ایک رومال نکالا. ماہی بوتل اور رومال کو دیکھ کر ماہر کو حیرت سے دیکھنے لگی، جو اس رومال میں بوتل سے کچھ ڈال رہا تھا. ڈالنے کے بعد ماہر رومال کو لے کے ماہی کی جانب آیا. یہ کیا ہے؟ ماہی پیچھے ہوئی تھی. کلوروفارم، جس سے میں ابھی تمہیں بے ہوش کروں گا. ماہر اطمینان سے کہتا ماہی کی جانب بڑھنے لگا اور ماہی الٹے پاؤں چلنے لگی. ماہر، نہیں، مجھے جانے دو، چھوڑو. دیکھو، چچا جان نے ایک بار تمہیں اس وجہ سے گھر سے بھی نکال دیا تھا. ماہی ڈر میں جو منہ میں آیا تھا بولتی گئی تھی. ہاں، کیا ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ ابو دوبارہ گھر سے نکال دیں گے نا. کوئی بات نہیں، لیکن تم آئندہ میرے سامنے نہ کرنے کی ہمت نہیں کرو گی. ماہر ماہی کی جانب بڑھ رہا تھا. پلیز پلیز جانے دو مجھے. میں نے آخر کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ماہی کو اس وقت اپنا آپ بے بس لگ رہا تھا. ماہی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے شادی کا منع کرنے کی، جبکہ تم میرے جنون، میری دیوانگی سب جانتی ہو، پھر بھی شادی سے انکار کر دیا. کس بات کی کمی ہے مجھ میں؟ آج مجھے بتاؤ. ماہر نے رومال واپس جیب میں رکھا اور ماہی کو نیچے بیٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھا. ماہی اٹھنے لگی تو ماہر نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور واپس بٹھا دیا. اب اگر اٹھنے کی کوشش کی، مجھے وہ رومال تمہیں سنگھانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. ماہر کی دھمکی پر ماہی چپ کر کے ساتھ بیٹھ گئی. اب بتاؤ، کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ماہر نے پوچھا تھا. ماہی چپ رہی تھی. کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بولو. ماہر دہاڑا تھا. مجھے تم سے شادی نہیں کرنی. ماہی نے جلدی سے بولا تھا. کیوں؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. کیونکہ تم پاگل ہو ماہر. ماہی نے اس بار غصے میں کہا. ماہر اسے دیکھتا رہا. بس اسی لیے؟ ماہر نے پوچھا. ہاں، مجھے تم جیسے پاگل انسان سے شادی نہیں کرنی. تم مجھے بھی پاگل کر دو گے. ماہی کی بات پر ماہر کو دکھ ہوا، لیکن وہ چاہتا تھا. ماہی بولے. سوری ماہی، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن خود سے دور جانے والی نہیں. تمہیں شادی تو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، پھر چاہے جیسے بھی کرو. ماہر نے سخت لہجہ استعمال کیا تھا. میں نہیں کروں گی. ماہی نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا. نہیں کرو گی؟ ماہر نے ماہی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا. نہیں. ماہی دروازے کی جانب بھاگی اور زور زور سے بجانے لگی اور چیخنے لگی. بچاؤ، بچاؤ. ماہر سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا. ماہی جب دروازہ بجا بجا کے تھک گئی تو مڑ کے ماہر کی جانب دیکھا، جو بڑے سکون سے ایک کرسی پر بیٹھا ماہی کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا. جب ماہی نے اسے دیکھا تو ماہر نے اٹھتے ہوئے کہا. کوئی نہیں ہے باہر. اگر تمہارا ہو گیا ہو تو آ جاؤ، کام کی بات کریں. ماہر نے اطمینان سے کہا اور ماہی کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی پر بیٹھایا. ماہی، میں چاہتا ہوں تم سیدھی طرح سب کی اور اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لو، ورنہ میں جو کروں گا وہ نہ تم سے برداشت ہوگا اور نہ کسی اور سے. ماہر نے ماہی کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا. مجھے نہیں کرنی تم سے شادی. تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ ماہر، چھوڑو میرا پیچھا. ماہی نے اپنا لہجہ انتہائی سخت کیا. ٹھیک ہے، پھر یوں تو یوں ہی صحیح. ماہر ابھی ماہی کے قریب ہوا ہی تھا کہ ماہی نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا. ماہر، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی. ماہی کی بات سن کے ماہر کے قدم وہیں رک گئے. ماہر نے کچھ دیر خاموشی سے ماہی کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے دروازہ کھول کے باہر کی جانب چل دیا اور گاڑی کے پاس پہنچ کے ماہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. ماہی چپ چاپ بیٹھ گئی، کیونکہ اگر وہ شور مچاتی تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ماہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نام یونی میں خراب ہو. ماہر نے پورے راستے ماہی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب گھر آیا تب ماہی کے اترنے سے پہلے کہا. ماہی، یاد رکھنا، میں تمہاری شادی کسی اور سے بھی نہیں ہونے دوں گا. اگر تمہاری شادی ہوگی تو صرف مجھ سے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور آج میں جا رہا ہوں. 4 سال تک تمہیں تنگ نہیں کروں گا. رشتہ بھیجوں گا، پروپر کروں گا سب، اور 4 سال تک اپنی ڈگری کمپلیٹ کروں گا. لیکن اگر تم ان 4 سال میں بھی مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئی
तो ठीक 4 साल बाद मैं तुमसे शादी करूँगा और ये मेरा वादा है तुमसे। अब जाओ, ज़िंदगी के 4 साल तुम्हें मेरी तरफ से तोहफ़ा समझो, क्योंकि इन 4 सालों में सिर्फ रिश्ता भेजूँगा, तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊँगा, न तुमसे किसी किस्म का कोई राब्ता रखूँगा। हाँ, एक आखिरी बात, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा, ये भी मेरा तुमसे वादा है। और तुम पर मेरी नज़र रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आऊँगा। 4 साल, अब जाओ, खुदा हाफ़िज़। माहिर ने कह के माही को गाड़ी से बाहर जाने का कहा और जैसे माही बाहर निकली, माहिर गाड़ी भगा ले गया और माही कितनी देर वहीं खड़ी माहिर की बातें सोचने लगी थी। माहिर ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन सब जानते थे ये तूफान से आने के पहले की खामोशी है। माहिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गया, इसके साथ साथ जिद करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। इस दौरान माही वहाँ गई, ना माहिर उसके पास गया, लेकिन माही के लिए जो भी रिश्ता आता माहिर उसे बेहाल करके वापस भेज देता। जफ़र साहब और बाकी सब उसे मना करके अब खामोश हो चुके थे। उन्होंने काफ़ी बार माही को माहिर से शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन न माही राज़ी होती थी, न माहिर अपनी हरकतों से बाज आता था। इसी तरह 4 साल गुजर गए और माहिर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। साथ साथ वो अपने बिजनेस को भी खड़ा कर चुका था। माही को 2 साल हो गए थे पढ़ाई मुकम्मल किए हुए। वो अब इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर रही थी। सीन चेंज। माहिर ऑफिस में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था, तब उसका मोबाइल बजने लगा था। नया नंबर देख के माहिर ने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली थी। जी कौन? माहिर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा था, अभी इतना अरसा भी नहीं हुआ कि तुम मुझे भूल जाओ। मैंने आपको पहचाना नहीं, काइंडली अपना नाम बताएं वरना डिस्टर्ब ना करें। माहिर कह के कॉल रखने वाला था कि अगले का जवाब आया, फारिस बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे कॉल की? माहिर ने नॉर्मली जवाब दिया, तुम्हें ये बताने के लिए मैं वापस आ गया हूँ, ना मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही माही को। फारिस ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा था। अच्छा, और कुछ? माहिर ने इत्मीनान से कहा और अपने लैपटॉप पर काम जारी रखा। तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है माहिर? फारिस को गुस्सा आया कि माहिर ने उसकी बात पर गौर तक नहीं किया। जी, मैं बिल्कुल सब समझ गया, अब मुझे काम करने दें, माहिर ने कह के कॉल काट दी और अपने काम में वापस मगन हो गया। कॉल दोबारा आने लगी। माहिर ने एक नज़र मोबाइल को देखा, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रेंग गई थी। हाँ कहो, अब क्या कहना है? माहिर ने कॉल उठाते हुए कहा था। माहिर, मैं माही को। अभी फारिस ने इतना ही कहा था कि माहिर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। पहली बात कि तुम माही को कुछ नहीं कर सकते। अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना मुझे अच्छी तरह से आता है। फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुमने अगर माही को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी, मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। माहिर ने बड़े सुकून से कहा। फारिस को मजीद आग लग गई थी। देखते हैं, फारिस ने कह के कॉल रख दी और यहाँ माहिर कुछ सोचने लगा। 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं माही, मेरी जान, तुम्हारा टाइम अब ख़त्म और मेरा टाइम शुरू। बहुत कहा था इन 4 सालों में राज़ी हो जाना, लेकिन शायद तुमने मेरी बात सीरियस नहीं ली, लेकिन अब तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। माहिर अपनी ऑफिस चेयर पर झूलते हुए सोच रहा था, मुझे कुछ करना होगा। अब वैसे भी मुझे फारिस के इरादे ठीक नहीं लगते। माही को बचाना होगा इसे, लेकिन उसके लिए माही को मुझसे शादी करनी होगी, जो वो आसानी से करेगी नहीं। अब उसे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, करूँगा, लेकिन माही से 1 मंथ तक शादी करके रहूँगा। माही चेयर पर झूलते हुए सोच रहा था। चलो माही मैडम, आपकी आज़ादी अब बस 1 महीने की है, इसके बाद मैं होऊंगा और तुम होंगी, और हसीन दिन हसीन रातें। माहिर खुद से सोच के हंसने लगा था। मैं आ रहा हूँ मेरी जान, अब जितना तुम बच सकती थी बच ली। माहिर हंसते हुए कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। माही, क्या हुआ है? तू आजकल इतनी चुप चुप क्यों है? शबनम, जो कि माही की बहुत गहरी दोस्त थी, क्लास के बाद माही के पास बैठती हुई पूछने लगी थी। यार, माहिर का बार बार रिश्ता आ रहा है और मैं हर बार मना कर देती हूँ, फिर भी इतना ढीठ है, दोबारा भेज देता है। शर्मिंदा सबके सामने मुझे होना पड़ता है, 4 सालों से यही होता आ रहा है। माही ने शबनम की जानिब देखते हुए बताया था। हाँ, तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? माहिर बहुत जज्बाती है यार, मुझे डर लग रहा है वो कुछ करे ना, और अब तो 4 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं, माही ने उदासी से कहा था।
ओहो यार, क्या हो गया है? कुछ नहीं होता। क्यों इतना सोच रही हो? जब 4 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाना है? शबनम ने माही को रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन माही माहिर को अच्छी तरह जानती थी कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अच्छा, घर चलें, माही ने खामोशी से कहा और वो दोनों घर की जानिब रवाना हो गई। शबनम और माही साथ साथ ही आती जाती थीं। शबनम का घर पहले आता था, माही का घर बाद में आता था। शबनम को छोड़ के माही अपने घर जा रही थी जब अचानक उसके सामने कोई आके खड़ा हो गया। माही ने सर ऊपर करके देखा तो माहिर को देख के उसका जिस्म में एक डर की लहर दौड़ गई। माही माहिर को 4 साल बाद देख रही थी और उसकी जान हथेली में आई हुई थी। तुम? माही बस इतना ही कह पाई। माहिर काफ़ी देर माही को देखता रहा, जैसे अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा हो। हाँ, मैं, वो भी 4 साल बाद। बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हें इतना करीब से देख के, इतने वक्त बाद। माहिर का इतना कहना था कि माही ने खौफजदा होकर उसे देखा। मुझे जाना है, माही कह के भागने लगी। गाड़ी में बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे, माहिर ने माही के आगे आते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, लेकिन माही को माहिर का लहजा बहुत सख्त लगा था। वो अब 23 साल का हो चुका था और हल्की दाढ़ी के साथ उसका मर्दाना हुस्न मजीद बढ़ चुका था। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, कह के माही दोबारा जाने लगी कि माहिर ने उसका हाथ पकड़ के आगे किया। तुम शराफत से बैठोगी या मैं उठा के पटकूं तुम्हें गाड़ी में? हर बात में जिद क्यों करती हो? माहिर ने माही की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा था। माहिर के बात करने में अब पहले से ज़्यादा रौब और पुख्तगी आ चुकी थी। माही आज उसके सामने बोल भी नहीं पा रही थी। इतने वक्त बाद आज दोनों का सामना हुआ था। माही बहुत डर गई थी। वो जानती थी अगर वो नहीं बैठी तो माहिर उसे उठा के बैठाने में सेकंड नहीं लगाएगा। माही गाड़ी में बैठ के माहिर को देखने लगी कि वो क्या बात करने वाला है। तब तक माहिर ने फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी लॉक कर दी और खुद सीट बेल्ट बांधने लगा। ये देख के तो माही का आधा सांस निकल गया था। उसने दरवाज़ा खोल के निकलना चाहा तो गाड़ी लॉक्ड थी। माही ने खौफजदा होके माहिर को देखा जो मुस्कुराता हुआ अपनी सीट बेल्ट बांध रहा था। माहिर, गाड़ी क्यों लॉक की है? माही ने डरते हुए पूछा था, लेकिन माहिर जब तक गाड़ी दौड़ा चुका था। माहिर, गाड़ी रोको, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? माही माहिर के हाथ पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ गाड़ी चलाता रहा। माही रोने लगी। कुछ देर बर्दाश्त के बाद माहिर ने गाड़ी रोकी और माही को बुरी तरह से डांटा। चुप, एकदम आवाज़ न आए मुझे ज़रा भी तुम्हारी, वरना वो हाल करूँगा कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मैं 19 साल का लड़का नहीं हूँ, पूरे 23 साल का नौजवान हो चुका हूँ। और अब मैं तुम्हें बताऊँगा मेरी मोहब्बत को ठुकराने का क्या अंजाम होता है। बहुत मोहब्बत करता था मैं तुमसे। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में बिछा देता। लेकिन अब तुम मेरी नफ़रत बर्दाश्त करोगी और मेरी मोहब्बत के लिए तड़पोगी। माहिर ने कह के गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। मुझे जाने दो प्लीज़ माहिर। माही ने इल्तिजा की, लेकिन माहिर अब पत्थर का बन चुका था। उसने माही की कोई बात नहीं सुनी और गाड़ी चलाता रहा। प्लीज़ माहिर, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, ऐसे मत करो, माही ने सिसकी लेते हुए कहा और खौफ की वजह से बेहोश हो गई। माहिर गाड़ी चलाता रहा और एक सुनसान जंगल में गाड़ी रोकी, जहां एक झोपड़ी बनी हुई थी और वहां किसी बंदे का नामो निशान तक न था। माहिर माही को उठा के इस झोपड़ी में ले गया और वहां रखी चारपाई पर माही को लेटा दिया और खुद माही के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। माही को होश आया तो वो फौरन उठ के दरवाजे की जानिब भागी। माहिर कुर्सी पर बैठा सब देखता रहा था। वापस आ जाओ मेरी जान, कोई नहीं है यहाँ इस जंगल में, बस तुम और मैं हैं, माहिर ने इस अंदाज में कहा। माही की रूह तक कांप गई। माहिर, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? माही ने बेबसी से पूछा था। तुम्हारा डैश करने के लिए, माहिर ने डैश इस्तेमाल करते हुए कहा। माही उसकी बात सुन के शौक सी कैफियत में उसे देखने लगी। क्या कहा? माही ने शौक से बाहर आते हुए पूछा था। यही कि तुम्हारा रेप करने के लिए यहाँ लाया हूँ, ताकि जब दोबारा कोई तुमसे शादी का पूछे तो तुम मना ना कर पाओ। माहिर ने माही को इस तरह देखा, माही के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते माहिर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे जाने दो। माही से अब बोला भी नहीं जा रहा था। डरो मत मेरी जान, जो भी करूँगा तुम्हें बेहोश करके करूँगा।
तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। माहिर कह के उठा और माही के करीब बढ़ने लगा, साथ ही अपनी शर्ट से बटन भी खोलने लगा, जिसे देखकर माही बुरी तरह से कांपने लगी। नहीं माहिर, दूर रहो मुझसे, प्लीज़ ऐसा मत करो। माही हाथ जोड़ के माहिर के सामने खड़ी थी, लेकिन माहिर ने माही के पास पहुंचते ही अपनी शर्ट उतार फेंकी और अपनी जेब से एक रुमाल निकाल के माही की नाक पर रखने लगा। माही की लाख मज़ाहमत के बावजूद भी माहिर माही को बेहोश कर चुका था। बेहोश करने के बाद माहिर ने माही का गाउन उतारा और अपने हाथ से उसकी गर्दन पर कुछ निशान बनाए और उसकी आस्तीन कैंची की मदद से थोड़ी सी फाड़ दी। उसके बाद माहिर ने हाथ से ही माही की लिपस्टिक फैला दी और इसी तरह 2-3 निशान उसके जिस्म पर करके खुद अपनी कुर्सी पर वापस जाके बैठ गया और दोबारा माही के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। सीन चेंज। माही अब तक कोचिंग से नहीं आई है। आसिया बेगम ने परेशान होते हुए असगर साहब से कहा था। हाँ, देर तो बहुत हो गई है, कब से मैं भी कॉल मिला रहा हूँ, उठा नहीं रही। असगर साहब ने कहा, मैं भाई साहब से पूछता हूँ। असगर साहब ने जफ़र साहब को कॉल की। भाई साहब, माहिर घर पर है? नहीं, वो आज सुबह से घर नहीं आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ, कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। खैरियत है सब? जफ़र साहब ने पूछा। भाई साहब, माही आज कोचिंग से वापस नहीं आई, कह के असगर खामोश हो गए थे और फिर कुछ देर बाद बोले, भाई साहब मेरी बेटी को बचा लें, माहिर गुस्से का बहुत तेज़ है, ये काम इसी का है, आप भी जानते हैं, प्लीज़ कुछ करें भाई साहब। असगर साहब की बात सुनकर जफ़र साहब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने सोबिया बेगम को बुला के उन्हें सब बताया। वो बिगड़ गईं कि इस बात का क्या सबूत है, माही माहिर के पास ही है। आफिया बेगम भी उनके साथ खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन उनकी राय सोबिया बेगम से मुख्तलिफ थी। वह जानती थी ये काम माहिर के सिवा और किसी का नहीं है। सागर साहब भी वहीं आ गए और इन्हें भी जब सब पता चला वो भी परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। सीन चेंज। माही को होश आया तो उसने माहिर को अपने बराबर में सोया हुआ पाया। वो फौरन उठ के खड़ी हो गई और आंखें तब खुली जब खुद को अपने गाउन से पाक बगैर दुपट्टे के देखा। माही ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी चीख रोकनी चाही थी, फिर हाथ लगने से महसूस हुआ कि बाजू फटे हुए थे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऊपर से अपनी गर्दन पर जलन की वजह से हाथ लगाया तो वहाँ भी उसे निशान महसूस हुए। माही वहीं बैठती चली गई और बुरी तरह रोने लगी। माहिर जो सोने का नाटक कर रहा था उठ के मज़े से माही को देखने लगा। घटिया इंसान, कर ली ना तुमने अपनी, क्या मिला तुम्हें? मेरी इज्जत नीलाम करके। निहायत घटिया और चीप इंसान हो तुम, बल्कि तुम इंसान नहीं हैवान हो। माही बुरी तरह से चीखते हुए कह रही थी। माहिर मज़े से उसकी सारी बातें सुन रहा था। माही मेरी जान, क्यों रो रही हो तुम? तुमने जिद ही ऐसी की मुझसे, मुझे करना पड़ा ये सब। और देखो, आज आखिर तुम्हें पा ही लिया मैंने। अब बताओ क्या करोगी? अब तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। माहिर बेशर्मी से बेड पर लेटे माही से ये सब कह रहा था और माही बुरी तरह सिसकियां ले रही थी और अपने वजूद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। अब क्या छुपा रही हो, मैं सब देख चुका हूँ स्वीटहार्ट। माहिर ने उठते अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, मुझे घर जाना है। माही हिकारत से माहिर को देखते हुए बस इतना ही जवाब दे पाई थी। हाँ, घर ही जाएंगे, अब ये लो, पहन लो। माहिर ने एक शॉल माही की जानिब उछालते हुए कहा और खुद अपने बालों को हाथ से सेट करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। साथ माही को भी आने का कहा। माही चुपचाप उसके पीछे चल दी। अभी आधा रास्ता ही गुजरा था कि माहिर के पास जफ़र साहब की कॉल आई थी। जी अबू, माहिर ने कॉल उठाते हुए कहा था। कहाँ हो और माही कहाँ है? आ रहे हैं घर दोनों, माहिर सच बताने लगा था। मतलब माही सच में तुम्हारे साथ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? जफ़र साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था और सब उनकी बात सुन रहे थे और मज़ीद परेशान हो चुके थे। मैं पूछता हूँ, क्या किया है तुमने माही के साथ? उसे फ़ोन दो। जफ़र साहब गुस्से से दहाड़े थे। अबू माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। माहिर ने माही की जानिब देखते हुए जवाब दिया, जो बुरी तरह से रो रही थी। बहुत घटिया साबित हुए हो तुम माहिर मेरे सामने आज। क्या किया है तुमने माही के साथ, बताओ मुझे। जफ़र साहब का गुस्सा मज़ीद बढ़ने लगा था। अबू मैं बता तो दूं, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे। मुझे बताने में शर्म नहीं आएगी, लेकिन आपको सुनने में आएगी, इसीलिए आप ये बात मत पूछें। लेके आ रहा हूँ इसे, आप लोग सब बात इससे ही पूछ लेना। माहिर ने कह के कॉल रख दी।
وہاں سب ظفر صاحب کے گرد جمع تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ ماہی کے ساتھ کیا کیا ہے ماہر نے، لیکن ظفر صاحب کی خاموشی نے سب کو سمجھا دیا تھا۔ اب وہ سب ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی گھر کے سامنے رکتے ہی ماہر اتر گیا، پر ماہی اب بھی گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اترو، باقی کا وہاں جا کے رونا سب کے سامنے، ماہر نے ماہی کو گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے کہا اور اسے لے کے اندر کی جانب بڑھا۔ ماہر کو دیکھتے ہی ظفر صاحب اس کی جانب بڑھے اور 2-3 زوردار تھپڑ اسے رسید کر دیے۔ صوبیہ بیگم کے پاس آج کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ماہی جب اندر داخل ہوئی، آسیہ بیگم اس کی جانب بھاگی تھیں۔ ماہی، کیسی ہے میری بیٹی؟ کیا کیا ہے اس ماہر نے تیرے ساتھ؟ وہ ماہی کو اپنے سہارے اندر لے کر آ رہی تھی کیونکہ ماہی کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں۔ ماہی پھر سے رونے لگی۔ اس کا رونا اس کی داستان بتا رہا تھا۔ سب ماہی کی طرف بڑھے اور ماہی کی حالت پر سب کو دکھ ہو رہا تھا۔ وہیں ماہر ابھی بھی بے شرموں کی طرح ڈٹائی سے کھڑا تھا۔ پولیس کو بلاؤ ساغر، لے کر جائے اس گنہگار کو یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ظفر صاحب تھک کے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ بھائی صاحب ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ماہر کو جیل بھیجنے سے کیا ہوگا؟ میری بیٹی کی زندگی تو برباد ہو چکی، اگر بات پولیس تک گئی تو میری بیٹی کہیں کی نہیں رہے گی۔ آپ سادگی سے دونوں کی شادی کر دیں، اس کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھائی صاحب، اب میری بیٹی کو کون اپنائے گا؟ اصغر صاحب ظفر صاحب کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ظفر صاحب نے انہیں اٹھایا اور اپنے مقابل بیٹھایا تھا۔ تم سچ میں چاہتے ہو کہ اس گھٹیا انسان سے تمہاری بیٹی کی شادی ہو؟ ظفر صاحب نے ماہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، ورنہ بہت بدنامی ہوگی میری بیٹی کی۔ اصغر صاحب کی بات سن کے ظفر صاحب نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد ساغر صاحب سے کہا۔ ساغر، جاؤ مولوی کا انتظام کرو، نکاح آج ہی ہوگا لیکن رخصتی 1 مہینے کے بعد، تاکہ پورے خاندان میں شادی کا پتہ چلے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ظفر صاحب کی بات سے اصغر اور ساغر صاحب دونوں ہی سہمت تھے۔ ساغر صاحب مولوی کو لینے چلے گئے۔ ماہی اب تک وہیں صوفے پر سب کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ساغر صاحب مولوی کو نکاح کے لیے لینے گئے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے بابا کے قدموں میں گر گئی، بغیر اس بات کا خیال کیے کہ اس کی شال اتر چکی ہے اور اس کی پھٹی بازو اور گلے کے نشان دیکھ کے سب شرمندگی سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ نہیں بابا نہیں، میں ماہر سے شادی نہیں کروں گی، وہ انسان نہیں حیوان ہے۔ ماہی بلک بلک کر رو رہی تھی، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ماہی کی ماں، اسے لے جاؤ اور اس کے کپڑے تبدیل کرواؤ، اصغر صاحب نے ماہی سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ جس بات پر ماہی نے خود کو دیکھا اور ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور سیدھا اندر بھاگی۔ شاور لے کے کپڑے بدلنے کے بعد ماہی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کی امی اسے سمجھا رہی تھی لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ تبھی اصغر صاحب بھی وہیں آئے اور وہ بھی ماہی کو سمجھانے لگے۔ کتنی قسموں واسطوں کے بعد بالآخر ماہی نکاح کے لیے راضی ہوئی اور خاموشی سے ماہر اور ماہی کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد ماہی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی اور یہ ظفر صاحب کا حکم تھا کہ شادی پراپر طریقے سے ہوگی۔ انہوں نے پورے خاندان میں ماہر اور ماہی کی شادی کی دعوت دی۔ اگلے مہینے شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ سب آہستہ آہستہ کر کے جمع ہو رہے تھے۔ کچھ مہمان ظفر صاحب کے یہاں تھے، کچھ اصغر صاحب کے یہاں۔ ماہر نے فی الحال خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، ماہی بھی بس چپ تھی۔ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا، ماہی کو اس سب سے بچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اسی طرح شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ بارات آئی ہوئی تھی۔ ماہی اسٹیج پر ماہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماہر اس سے مکمل لا تعلق تھا۔ ماہی بس اس بات سے خوش تھی کہ ماہر اس سے کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ خود بھی ماہر سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساری رسموں کے بعد ماہی کو ماہر کے کمرے میں بیٹھا کے صوبیہ بیگم چلی گئیں۔ ماہی اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کھول کر چاند کو دیکھنے لگی۔ آج اپنی بے بسی پر خود رونا آ رہا تھا، لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز پر حقیقی دنیا میں واپس لوٹی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، ماہر اس کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ماہی نے دوبارہ رخ پھیر لیا۔ ماہر ماہی کے قریب پہنچا اور وہ بھی ماہی کی طرح ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے چاند کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو ماہی؟ تمہارا چاند تو یہاں ہے، اسے دیکھو نا۔ ماہر نے ماہی کا چہرہ اپنے
जानिब करते हुए कहा। लेकिन एक ही लम्हे में माही ने माहिर का हाथ झटक दिया और उसे दूर जाके खड़ी हो गई। तुम चांद नहीं, चांद पर ग्रहण हो। क्या बदतमीजी है माही, आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम इस तरह बदतमीजी करोगी मेरे साथ। माहिर ने माही की हरकत पर खोल कर कहा था। बदतमीजी ये नहीं, बदतमीजी वो थी जो तुमने की। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और हमेशा नफरत करती रहूंगी। चले जाएं मेरी नज़रों से दूर, माही ने तकरीबन चीखते हुए कहा था। माही की बात सुन के माहिर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मेरी मासूम जान, तुमने इतना पागल समझा हुआ है मुझे कि मैं आज रात बाहर जाऊंगा। तुम मासूम हो मेरी जान, लेकिन मैं नहीं, माहिर ने माही की जानिब बढ़ते हुए कहा था। देखो माहिर, मुझे हाथ भी मत लगाना। तुम अपनी हवस तो पहले ही पूरी कर चुके हो, तो अब क्यों मेरे पास आ रहे हो, माही ने मज़ीद दूर होते हुए कहा। माही का दिल इस वक्त बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो माहिर से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और वो मज़ीद उसके करीब आ रहा था। पिछली बार तुम्हें बेहोश करके हवस पूरी की थी, अब की बार तुम्हें होश में रख के अपनी हवस पूरी करूँगा। और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारी इस तरह की बातें सुन के मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं चला जाऊँगा, तो मेरी जान, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो और मेरा साथ दो, वरना अपनी तकलीफ़ की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। क्योंकि मैं तो अपना हक लेके रहूँगा, चाहे फिर तुम साथ दो या फिर मुझे खुद सब कुछ करना पड़े। इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह मेरे पास आओ। माहिर की बात सुन के माही का मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने बेरहम कैसे हो सकता था वो। तुम मुझे इस तरह हाथ भी नहीं लगा सकते, यहाँ सब है, माही ने दूर जाते हुए कहा था। माही की बात पर माहिर हंसने लगा था। तो तुम्हें ये लगता है यहाँ तुम्हें सब बचाने आएंगे, माहिर कह के माही की जानिब बढ़ा। तो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते माहिर, माही ने कह के पीछे देखा। दीवार करीब थी, फासला ख़त्म होने को था। अच्छा नहीं कर सकता, माहिर ने एक झटके से माही का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था। और तुम्हें एक हकीकत भी बतानी है आज, माहिर ने माही के कान में सरगोशी करते हुए कहा। कैसा सच, माही खुद को माहिर से दूर करने की कोशिश करने लगी, जो माहिर ने नाकाम बना दी। इस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, माहिर ने माही के कान को अपने लबों से छूते हुए कहा। तो माहिर की आंखें खुल गई थी। क्या मतलब, माही ने हैरत से माहिर की जानिब देखा था। मतलब तुम्हारे साथ जो भी होगा वो आज रात होगा और तुम्हारे होश व हवास में ही होगा। इस रात कुछ नहीं हुआ था, माहिर ने ये कह के माही की कमर के गिर्द घेरा डाला और उसे खुद से लगाया था। तो तुम झूठ बोल रहे हो, माही को बुरी तरह से शौक लगा था। वो इस बात में ये नोट ही नहीं कर पाई थी कि माहिर इसका दुपट्टा उतार चुका है। मुझे झूठ कहने की क्या ज़रूरत है, ये कह के माहिर ने माही की गर्दन पर अपने प्यार की मोहर जब्त की थी। छोड़ो मुझे, तुमने सबसे झूठ कहा और मुझसे शादी कर ली। माही को यकीन नहीं आ रहा था कि माहिर ने उसके साथ इतनी बड़ी गेम खेली है। क्यों, तुम क्या सच में बगैर निकाह के वो सब चाहती थी। माहिर जो माही की गर्दन पर झुका था, अपना चेहरा ऊपर करते हुए माही को देखने लगा। निहायत ही चीप हो तुम, माही खुद को छुड़वाने लगी थी। ऐसे ही छुड़ा लोगी तुम मुझसे खुद को। माहिर माही की मज़ाहमत देख के उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में लेते हुए उसके मज़ीद करीब हुआ था। माहिर, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ। माही माहिर की बाहों में तड़प रही थी। अगर तुम में हिम्मत है तो खुद को छुड़ा लो माही, मैं फिर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। 5 मिनट देता हूँ तुम्हें, छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। माहिर ने माही के हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए थे। थोड़ा फासला कायम करते हुए माही को एक मौका दिया। माही दिलो जान से इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन वो माहिर की गिरफ्त के आगे भी मचल रही थी, लेकिन अपने हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। बाकी 1 मिनट, माहिर ने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा। माही की कोशिश में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। टाइम अप स्वीट हार्ट, नाउ कम ऑन। माहिर माही को अपनी बाहों में उठा के बेड की जानिब बढ़ा था। नहीं, माही चीखने लगी थी। माहिर ने माही के मुंह पर हाथ रख दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास है, तुम रात में चीख चीख के सबको ये कहोगी कि तुम्हारा शौहर तुम्हें हाथ लगा रहा है। माहिर ने माही के मुंह पर हाथ रख के कहा। तुमने अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं चीखूंगी, माही ने अपना डर दूर करते हुए माहिर को वार्न किया था।
माहिर ने आईब्रो उचका के माही को देखा और बेड पर सीधा लेट गया और माही को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। माही हैरान सी उसे देखने लगी कि वो क्या सच में डर गया है। तब माही के हैरान चेहरे को देख के माहिर हंसने लगा और कहा, जाओ आराम करो। माहिर कह के उठा और चेंजिंग रूम में चला गया। माही अब तक हैरत से उसे देख रही थी कि माहिर ने उसे छोड़ कैसे दिया। माहिर चेंज करके आया तो माही अब तक वहीं बैठी थी। क्या बात है, इरादा बदल दिया क्या? माहिर ने टॉवल से अपना हाथ पोंछते हुए कहा था। नहीं, माही ने फौरन बेड से उठते हुए कहा। माहिर बेड पर दराज हो गया। माही ने बैग खोल के अपना एक सूट निकाला और चेंज करने चली गई। वापस आई तो माहिर लेटा मोबाइल चला रहा था। माही इधर उधर अपनी जगह ढूंढ रही थी। माहिर टेढ़ी आंखों से माही को देख रहा था। कमरे में एक बेड के अलावा माहिर ने कुछ नहीं रखवाया था। सोना तो मेरे साथ ही पड़ेगा मेरी जान। माहिर की आवाज़ पर माही ने चौंक कर उसे देखा था कि उसे कैसे पता चल गया कि वो अपने लिए जगह ढूंढ रही है। मैं नहीं सोऊंगी तुम्हारे साथ, माही ने अपना फैसला सुनाया था। माहिर करवट लेके हंसने लगा। माही उसे देखने लगी कि वो पागल तो नहीं हो गया है। अम्मी के पास सोओगी फिर मेरी सोना? माहिर ने हंसते हुए माही का मजाक उड़ाया था। तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो। माही ने अपना मुंह दूसरी जानिब करते हुए कहा और अपने लिए कुछ ढूंढने लगी थी। कुछ नजर न आने पर उसने अलमारी खोल के देखा तो उसमें लिहाफ और कंबल रखे थे। माही ने एक लिहाफ और एक कंबल उठाया, लिहाफ नीचे बिछाया और कंबल ओढ़ने के लिए रखा। माहिर सब खामोशी से देख रहा था। मर जाओगी ठंड में मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, किसी को ठंड नहीं लगेगी। माहिर ने माही को देखते हुए कहा था, मैं तुम्हारे पास आने की बजाय मरना पसंद करूंगी। माही ये कह के अपने बनाए हुए बिस्तर में दराज हो गई थी। माहिर अपनी जगह से उठा और माही के साथ उसके बिस्तर में दराज हो गया और पूरी तरह माही पर काबिज हो गया। ये क्या बदतमीजी है माहिर, उठो यहाँ से, छोड़ो मुझे। माही झुंझलाई थी। तुम जहाँ मैं भी वहाँ, याद नहीं तुम्हें? ये मेरे बचपन की आदत है। माहिर कह के माही की तरफ झुका। वैसे मैं सोचता था जब तुमसे शादी होगी बहुत सारी बातें करूंगा तुमसे, पर उम्मीद नहीं थी इस तरह तुमसे शादी करनी पड़ेगी। इतनी जिद ना करती तो मुझे भी वो सब ना करना पड़ता। माहिर माही की जानिब झुका। माही के रुखसार पर उंगलियां फेरते हुए कह रहा था, माहिर छोड़ो मुझे। माही ने उठना चाहा लेकिन माहिर ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। ना मेरी जान, ऐसा नहीं करते, वरना फिर जो मैं करूँगा वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। माहिर ने माही के लबों को फोकस में लेते हुए कहा था। नहीं माहिर, प्लीज़ नहीं। माही ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे माही, लेकिन तुमने कभी भी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की, हमेशा मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। लेकिन माही बस अब और नहीं। माहिर कह के एक झटके से उठा और माही को भी हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। अगर तुम मुझसे शादी वाला रिश्ता कायम ही नहीं करना चाहती तो इस वक्त तुम यहाँ मेरे कमरे में कर क्या रही हो? माहिर की बात पर माही ने हैरत से उसे देखा था। अपने शौक से नहीं आई, ज़बरदस्ती लाए हो तुम मुझे यहाँ। माही ने अपना आंसू साफ करते हुए कहा था। ठीक है फिर निकलो मेरे कमरे से बाहर। माहिर ने माही का हाथ पकड़ के उसे दरवाजे की जानिब धक्का दिया। माही हक्का बक्का सी उसे देखने लगी। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? माही ने माहिर की जानिब देखते हुए कहा था, जहाँ भी जाओ आई डोंट केयर, बस मेरे कमरे से निकलो। अगर मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। माहिर ने माही का हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। माही का दिल तड़प के रह गया अपनी इस बेइज्जती पर। वो बाहर खड़ी यहाँ वहाँ देखने लगी। शुक्र था वहाँ इस वक्त कोई मौजूद न था। कुछ सेकंड माहिर ने कमरे में चक्कर काटे, फिर बाहर का दरवाज़ा खोल के इस वक्त माही को अंदर खींच लिया। माही इस अचानक हमल पर डर गई थी, पर माहिर ने इसे बेड के पास ले जाके छोड़ा। सो जाओ यहाँ और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, माहिर कह के खुद बेड की दूसरी जानिब दराज हो गया। माहिर डरते डरते एक कोने में बैठ गई। काफ़ी देर यूं ही बैठी रही, फिर एक कोने में लेट गई और लेटती ही उसे नींद आ गई थी। So this is the end of this episode. Khuda Hafiz.